हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं WC और LS कमांड और साथ में इसके ऑप्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं WC कमांड के साथ। द WC कमांड इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ लाइन्स, वर्ड काउंट, बाइट एंड कैरेक्टर काउंट्स in the file specified in the file argument. The basic syntax of WC command is WC space option space file name. See, I have created f1.txt here and its content is hello Unix. Now execute WC space f1.txt, then the output is first line count, second word count and third character count or word count byte, means byte count, and file name. So by default it displays 4 columnar output. First column always shows the number of lines, second column shows number of words present in the file, and third column shows number of characters present in the file, and fourth column display file name itself. नेक्स्ट इज देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन WC कमांड का, WC-L ऑप्शन. L ऑप्शन प्रिंट नंबर ऑफ लाइन्स प्रेजेंट इन द गिवन फाइल. सी द एग्जाम्पल WC space -L f1.txt, it returns 1. f1.txt में कितनी लाइन्स है? ओनली 1. नेक्स्ट ऑप्शन इज -W. It returns number of words present in the given file. Here number of words present only 2. So it returns 2 and the file name. The third option is -C. It returns count of bytes present in the file. So how many bytes present? See the content. Hello Unix. Hello contains 5 characters, 5 bytes, then space 1 count, then Unix 4 byte count and 1 is for new line. So total 11 words. 11 characters. So it returns 11. Now see, you can combine more than one option in one command. Here WC-L and W, I have combined these two options. It returns line count and word count. Then the next example, see WC-LC, it returns line count and character count. And in third example W and C दोनों options को combine किया है, so it returns word and character count. Okay, now see, one can pass more than one file name in the argument. Means see WC F1 F2, यहाँ पर मैंने 2 फाइल नेम दिए, तो 2 फाइल का आउटपुट कैसे शो होगा, डिस्प्ले होगा? देखिए, जब आप मोर देन 1 फाइल नेम देते हैं तो फर्स्ट लाइन जो है वो आउटपुट आपका 4 कॉलमनर आउटपुट होगा, बट जो फर्स्ट लाइन होगी उसमें जो लाइन्स, वर्ड्स और काउंट दिखाएगा वो फर्स्ट फाइल का दिखाएगा, सेकेंड लाइन में सेकेंड फाइल का, एंड यहाँ पर थर्ड लाइन देखिए, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन होगी जो टोटल डिस्प्ले करेगी. टोटल लाइन नंबर्स इन फर्स्ट एंड सेकेंड फाइल, टोटल वर्ड्स काउंट इन फर्स्ट एंड सेकेंड फाइल, एंड टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन फर्स्ट एंड सेकेंड फाइल. ओके, then the next command, LS command. The basic syntax of LS command is again LS space option and file name. LS command विदाउट फाइल नेम भी एग्जीक्यूट होगी. देखिए LS, सिंपल LS कमांड हम लिखेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा?
It display all the files and directories available in the system. See, the list here is available, which shows all the files and directories of the system in various colors. The blue color represent directory, green color represent executable or recognized data files, and sky blue represent symbolic link file. Yellow with black background represent device, pink represent graphic image file, red represent archive file and zipped file. Okay, so first option of ls command is hyphen small a. Hyphen small a show all the hidden files in the directory. See, in simple ls command, डॉट एंड डॉट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है और ना ही कोई अदर हिडन फाइल्स शो हो रही हैं. बट इन केस ऑफ ls हाइफन ए, देखिए यहाँ पर डॉट, एक सिंगल डॉट, देन फिर डॉट डॉट, देन यहाँ पर बहुत सारी हिडन फाइल्स हैं जिनके आगे डॉट लगा हुआ है. तो जिस भी फाइल के आगे डॉट लगा है वो सारी हिडन फाइल्स है. यहाँ पर डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है करंट डायरेक्टरी को, एंड डॉट डॉट रिप्रेजेंट करता है पेरेंट डायरेक्टरी को. अगर आप अपनी खुद की हिडन फाइल्स बनाना चाहें तो आप हिडन फाइल क्रिएट कर सकते हैं. सिंपल आपको अपनी फाइल नेम के आगे एक डॉट सिंबल पुट करना होगा. देखिए यहाँ पर एग्जांपल, कैट फाइल क्रिएट कर रही हूँ मैं, हिडन फाइल कैट रिडायरेक्शन ऑपरेटर डॉट a1. तो यहाँ पर डॉट a1 जो है वो हिडन फाइल है. देखिए यहाँ पर ls हाइफन ए करूँगी तो मैं a1 प्रिंट होगा, और अगर सिंपल ls कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो डॉट a1 यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा. सिमिलरली डॉट ऑपरेटर पुट करके आप डायरेक्टरी भी क्रिएट कर सकते हैं, हिडन डायरेक्टरी. सी द एग्जाम्पल mkdir स्पेस डॉट फाइल नेम डॉट a12. तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टरी क्रिएट हो गई. ls हाइफन ए करेंगे तो यहाँ पर हिडन डायरेक्टरी डिस्प्ले हो रही है डॉट a12. नेक्स्ट ऑप्शन है हाइफन कैपिटल ए. कैपिटल ए is used to show the hidden files but not the current directory, means dot, and parent directory dot dot. It means यहाँ पर डॉट एंड डॉट डॉट को छोड़कर जितनी भी हिडन फाइल्स हैं वो सभी डिस्प्ले होंगे. नेक्स्ट ऑप्शन है हाइफन स्मॉल टी. स्मॉल टी लिस्ट all the files and directories according to their modification time, means the list shows last edited file first. The next option is hyphen I. Hyphen I option shows inode number of all the files and directories. See inode number यहाँ पर मैंने ब्लॉक बना के बताया है. हर फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम के आगे उसका inode number डिस्प्ले होगा. The next option is hyphen R. Hyphen R option display all the files and directories in reverse order, means Z to A. The next option is hyphen capital R. Hyphen capital R option display all the files recursively in a tree-like structure. See, for example, it lists all the files and directories first, and then डॉट, नीचे देखिए लिस्ट के, लिस्ट पूरी हुई उसके नीचे डॉट स्लैश ए लिखा है. तो यहाँ पर देखिए ए डायरेक्टरी है, ए इज़ डायरेक्टरी, फर्स्ट डायरेक्टरी. ए के अंदर डायरेक्टरी है बी और फाइल है F1. ठीक, अब ए के अंदर डायरेक्टरी है बी, तो नेक्स्ट उसने फिर शो किया डॉट स्लैश ए स्लैश बी. बी डायरेक्टरी है, बी डायरेक्टरी के अंदर क्या है F3.gz. ठीक, तो ऐसे ये सारी डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर शो होगा. यहाँ पर मैंने केवल एक ही का शो किया है. सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन है हाइफन कैपिटल F. कैपिटल फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल्स. ओके, यहाँ पर देखिए डिफरेंट कैरेक्टर्स क्या क्या यूज़ हो रहे हैं. स्लैश फॉर डायरेक्टरी मैंने सर्कल करके बताया है.
देखिए यहाँ पर जितने भी डायरेक्टरीज है सबके आगे स्लैश लगा हुआ है, डायरेक्टरी ब्लू से शो हो रही है। एंड रेगुलर फाइल्स के आगे टिल्ड कैरेक्टर शो हो रहा है। देन लिंक फाइल्स, देखिए यहाँ पर A5 एक लिंक फाइल है जिसपे @ लगा हुआ है। एंड ऑल द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के आगे एस्ट्रिक सिंबल लगा हुआ है। ठीक, हियर इज वन एग्जांपल टू कंबाइन टू ऑप्शंस। यहाँ पर I एंड L ऑप्शन कंबाइन करके एग्जीक्यूट किया हुआ है। इट शोज inode as well as long listing format of files and directories. So you can combine more than one option together. See the next option, -l. -l to show information about the files and directories in long listing format. Now the long listing format contains 7 columns. यहाँ पर डिटेल में देखेंगे 7 कॉलम्स क्या होते हैं। फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट्स 10 कैरेक्टर्स। इन 10 कैरेक्टर्स में जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है फाइल टाइप। यहाँ पर देखिए फाइल के टाइप्स बताए हुए हैं। डैश रेगुलर फाइल बताएगा, D डायरेक्टरी बताएगा, C कैरेक्टर डिवाइस फाइल्स, B ब्लॉक डिवाइस फाइल्स, S लॉक सॉकेट फाइल्स, P नेम्ड पाइप एंड L सिंबॉलिक लिंक। इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर D शो कर रहा है डायरेक्टरी, डैश शो कर रहा है रेगुलर फाइल एंड L रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबॉलिक लिंक। यहाँ पर देखिए सिंबॉलिक लिंक A5 to A1, यहाँ पर एक सिंबॉलिक लिंक क्रिएटेड है। ठीक, एंड यहाँ पर जितने भी कॉलम्स है, अब कॉलम्स देखिए क्या क्या है। फर्स्ट कॉलम हमने देख लिया, यहाँ पर 10 कैरेक्टर्स है। फर्स्ट कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है फाइल टाइप एंड जो 9 कैरेक्टर्स है, रिमेनिंग 9 कैरेक्टर्स में से स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी 3 कैरेक्टर्स 3 का बंच बनेगा यहाँ, RWX। तो फर्स्ट RWX परमिशंस इज यूज्ड फॉर यूजर, सेकेंड RWX इज यूज्ड फॉर ग्रुप एंड थर्ड यहाँ पर देखिए थर्ड RWX इज फॉर अदर यूजर्स। सेकेंड कॉलम यहाँ पर देखिए सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ blocks or links. Then third column represent owner of the file. Fourth column represent group of the file. Then fifth column represent size of the file in bytes. Sixth column represents, देखिए यहाँ पर पहले date display होगी and time. So last modified date and time. And last column, 7th column displays file name. The next option is -G. -G is similar to long listing format but it exclude the group owner. देखिए यहाँ पर owner name and group owner name -L के केस में HP user, यहाँ पर group owner भी वही है और owner भी वही है। यहाँ पर group owner exclude हो गया, बाकी पूरा आउटपुट सेम है। नेक्स्ट हम ls कमांड के साथ कुछ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं। सो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पर 3 टाइप्स के वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट एस्ट्रिक, देन क्वेश्चन मार्क एंड स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे ब्रैकेटेड कैरेक्टर्स बोलते हैं। सी एस्ट्रिक कैसे यूज़ होगा। एस्ट्रिक क्या रिप्रेजेंट करता है। एस्ट्रिक मैचेस 1 or more occurrences of any character including no character। ठीक, इट मीन्स यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल ls A* मीन्स जो भी लिस्ट होगी उसमें फाइल्स एंड डायरेक्टरीज जो भी लिस्ट होंगी वो उसका स्टार्टिंग कैरेक्टर क्या होगा A, और उसके बाद कोई कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को वो मैच करेगा। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी A कैरेक्टर से स्टार्ट होने वाली फाइल्स थी वो सभी डिस्प्ले हुई। ठीक, द नेक्स्ट एग्जाम्पल है ls A क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट्स और मैचेस अ सिंगल अकरेंस ऑफ एनी कैरेक्टर, ओनली 1 अकरेंस ऑफ। एस्ट्रिक के केस में 1 और मोर अकरेंस। यहाँ पर देखिए दोनों आउटपुट को कंपेयर कीजिए, A एस्ट्रिक एंड A क्वेश्चन मार्क के केस में जो भी फाइल्स डिस्प्ले हुई है देखिए वो केवल 2 कैरेक्टर लॉन्ग है, मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर A है एंड सेकेंड क्वेश्चन मार्क की जगह जो भी कैरेक्टर आएगा मीन्स ओनली 1 कैरेक्टर।
सेकेंड नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, LS मैंने डबल क्वेश्चन मार्क यूज़ किया है, इट मीन्स ए कैरेक्टर होगा, फर्स्ट कैरेक्टर ए होगा, देन उसके बाद कोई भी दो कैरेक्टर्स, तो यहाँ पर दो फाइल नेम लिस्ट हुए हैं। देन नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स, LS स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा है ABC देन एस्ट्रिक, तो ABC स्क्वायर ब्रैकेट क्या करेगा, मैचेस एनी अकरेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, यू कैन यूज एनी नंबर स्पेशल कैरेक्टर्स एज वेल। यहाँ पर देखिए ABC, तो A से स्टार्ट होने वाले और उसके बाद कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो, देन B से स्टार्ट होने वाले, देन उसके बाद कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो, एंड देन C, तो तीनों से देखिए यहाँ पर आउटपुट डिस्प्ले हुआ है ABC। नेक्स्ट एग्जाम्पल, LS ब्रैकेट में A to Z लिखा हुआ है, मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर A to Z कुछ भी हो, ठीक, और उसके आगे का नाम, मतलब यहाँ पर तो पूरा ही लिस्ट होगा A to Z। आप यहाँ पर नंबर भी दे सकते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है मैंने, देखिए यहाँ पर दो नंबर्स, एक डायरेक्टरी क्रिएट किए एंड फाइल, एंड LS कमांड एग्जीक्यूट किए 0 to 9, ठीक, तो 0 to 9, तो यहाँ पर लिस्ट हुआ, दोनों डायरेक्टरी एंड फाइल दोनों लिस्ट हुई हैं। ओके, सो यहाँ पर LS कमांड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में आगे का देखेंगे। ओके, थैंक यू।